Good morning, students. Today we are going to study about this chapter 9, that is financial market. So, in that we are going to study about the introduction about the financial market. Now, this chapter also means that financial means the funds which can be raised, okay, and market means a market, okay. Now, introduction in this chapter we are going to study about this introduction part about financial market. What is financial market? What concept we are going to study in these chapters? Okay, so let us start with the introduction part. First one, it is given introduction. Indian financial structure is mainly divided in two parts: formal organized financial market and unorganized financial market. Okay, so this financial structure, Indian financial structure is divided in two parts. First one is formal, which are organized, and second it is the unorganized financial market. Now formal organized मतलब एक स्ट्रक्चर जो फॉर्मली अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस है. अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है. फाइनेंशियल मार्केट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट component of the organized financial market. So in this chapter we are going to study organized financial structure. Now these organized financial structures is divided into four parts. Formal organized structure is divided into four parts. First one, financial institutions. Second, financial instrument. Third one, financial services. And fourth one, financial market. Okay, now financial institutions means a bank, commercial bank, okay, various types of banks included, mutual funds, insurance company, okay, these are the financial institutions. Now in that, financial instruments means treasury bills, okay, then certificate of deposit, call money, notice money, okay, commercial papers. So these are the instruments. Now what do you mean by financial services? Now financial services means the banks which give a services to public, that is loan, then डिपॉजिट, ठीक है. तो ये सारी फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दीज आर द फैसिलिटीज़ विच गिवन बाय फाइनेंशियल सर्विसेज. नाउ फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज मनी मार्केट and capital market. Now our chapters depend on this, and we are going to study is financial market. So we are going to focus on this topic, financial market, which is divided in two parts, money market and capital market. So it is given here, financial market includes the capital market and money market. As before I have explained you, capital market is an organized market which provides the capital in form of the funds from the saving of the society. Now capital market is a formal market which provides capital. Capital means the funds or money in the form of funds from the saving of the society. Now we are the public, right? So we invest our money, we invest our saving in bank, राइट. कस्टमर्स बैंक के पास इन्वेस्ट करते हैं, राइट. बैंक क्या इन्वेस्ट करती है? शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करती है. और ये शेयर्स या तो गवर्नमेंट इशू करती है या तो कंपनी इशू करती है. डिफरेंट कंपनी इश्यूज शेयर्स, और यही बैंक लोगों के पैसे, पब्लिक के पैसे किस में इन्वेस्ट करती है? शेयर्स और बॉन्ड्स में. और जब ज़रूरत पड़ी कंपनी या गवर्नमेंट को, तो ये बैंक के पास से वो कैपिटल फंड रेज कर सकती है. ओके,
तो ये कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट ऐसे ही कुछ है। तो कैपिटल मार्केट्स क्या है कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। कैपिटल मार्केट किसके लिए है? लॉन्ग टर्म फंड्स, जिसको लॉन्ग टर्म पैसों की ज़रूरत है, तो वो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को ज़रूरत है। तो ये कैपिटल मार्केट क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स रिक्वायरमेंट है। Capital market becomes helpful in the economic growth of the country. It helpful to economic growth of the country. Money markets satisfy the need of capital through the short-term instruments such as treasury bills, commercial paper. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ बिजनेस की जो है, जैसे कि बिल पे करना, सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है वो सब पे करने के लिए वर्किंग कैपिटल, वो सारी चीज़ें वर्किंग कैपिटल में आता है। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है। तो हमें कैपिटल चाहिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। तो मनी मार्केट का काम क्या है? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, जिसके थ्रू वो फंड्स शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकती है। नाउ नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स मेनली कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. Financial market is an important component of financial structure where transactions are carried out on a large scale. Investors can decide on their own when and where their savings should be invested based on the perception of trend of financial market. Now investors यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कहाँ मेरा पैसा जो सेविंग्स है वो कहाँ इन्वेस्ट करना है, और वो भी फाइनेंशियल मार्केट डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल मार्केट में कहाँ मुझे पैसा अपना लगाना है ताकि मैं फंड रेज कर सकूँ. पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल मार्केट. नाउ देर आर 3 पार्टिसिपेशन. फर्स्ट वन है इश्यूअर्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़, जो शेयर्स. फर्स्ट कौन है? बोरोवर्स ऑफ मनी, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स. इश्यूअर्स यानी कि जो शेयर्स या तो पैसा लगा रहा, ठीक है, शेयर्स इश्यू करता है. दूसरा क्या है? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि तीसरा है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स. ना एक लेंडर होता है, एक बोरोवर होता है, और एक बीच में एक लिंक होता है. ठीक है, बीच में एक लिंक यानी कि जैसे कि ब्रोकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब बीच में एक मिडिल पर्सन समझो. ठीक है, तो इश्यूअर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी जो ये इश्यू करता है. ठीक है, शेयर्स इश्यू किए. ठीक है, यहाँ पे परचेज ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे शेयर्स किसने इश्यू किए? जो भी कंपनी है, गवर्नमेंट है. ठीक है, तो फर्स्ट वो बोरोवर हो गया, शेयर्स इश्यूज. ठीक है, ये बोरोवर कहलाएगा, जैसे कि आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है, बोरोवर्स ऑफ मनी. दूसरा क्या है? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, ये सिक्योरिटी जो परचेज करता है. ठीक है, और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स जैसे कि LIC, इंश्योरेंस कंपनी हो गया. ठीक है, बहुत दूसरी कंपनी बैंक हो गई, म्यूचुअल फंड. दीज आर दी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स. नाउ यहाँ पे सुनो, बोरोवर्स यानी कि दोज हु बोरो मनी, मनी बोरो करते. परचेज ऑफ सिक्योरिटी, शेयर्स इश्यू किए गवर्नमेंट ने, या तो जो भी है, जो भी स्कीम्स उन्होंने कंपनी ने जो भी शेयर्स इश्यू किए, बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह इश्यू किए. ठीक है, ठीक है, क्यों इशू किए? क्योंकि इसको कैपिटल चाहिए, यानी कि फ़ंड चाहिए शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए या तो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए. अब वही शेयर्स कौन खरीदता है? जैसे कि पब्लिक हो गई, ठीक है, कंपनी हो गई. ठीक है, कंपनी यहाँ पर डिपेंड करती है, बहुत सारी कंपनी जो अपने शेयर्स इश्यू करती है, क्यों करती है? ताकि उनको फ़ंड चाहिए होता है, ज़्यादा फंड चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस में डे टू डे यूज़ कर सके, राइट, और उन्हें प्रॉफिट मिल सके. तो ये पब्लिक शेयर्स परचेस करती है कम जिसके भी है, राइट. तो अभी कंपनी को मिल गया, ये पब्लिक ने, पब्लिक या तो कंपनी या तो गवर्नमेंट ने जो भी शेयर्स खरीदे, परचेज किए ना सिक्योरिटीज़, शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह, बॉन्ड्स,
ट्रेजरी बिल्स, तो ये उन्होंने ख़रीदा, राइट। तो ख़रीदा मतलब उसको पैसा मिल गया। तो पैसा कौन देता है? बैंक वाले, यानी कि LIC है, म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी है वही बोरोवर्स है या तो कंपनी परचेज करती है। यहाँ पे परचेज और सेल सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज की जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। तो यहाँ पे 3 पार्टिसिपेशन है, इश्यूअर्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि जो शेयर्स इश्यू करता है, जैसे कि बोरोज ऑफ मनी, परचेज ऑफ सिक्योरिटी यानी कि जो पैसा दे रहा है, सिक्योरिटी इन लोग ने परचेज की ना तो फाइनेंशियली कहलाएगा, और वही सिक्योरिटी के बदले जो पैसा मिला वो पैसा किसको दिया? बोरोवर्स ऑफ मनी। लेकिन ये दोनों के बीच में एक मिडिल पर्सन आता है, दैट इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। ये दोनों के बीच भी लिंक है, और वो लिंक कौन है? LIC, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, कमर्शियल बैंक हो गई, ब्रोकर्स हो गया। सो दीज आर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जिसके थ्रू परचेज ऑफ सिक्योरिटीज होता है और सेल्स ऑफ सिक्योरिटी होता है। मतलब क्या करती है बैंक? पब्लिक के पास से सेविंग कलेक्ट करती है और कंपनी को प्रोवाइड करती है, या तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल मार्केट इज मेनली डिवाइडेड इनटू पार्ट, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड, वाइल मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी फॉर ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए। तो 2 पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट में, कैपिटल और मनी मार्केट। कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए है और उसमें एग्जांपल जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। मनी मार्केट किस चीज़ के लिए? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। बट कैपिटल मार्केट में 2 पार्ट डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। ना प्राइमरी मार्केट जो न्यूली शेयर्स इशू की होती है, ठीक है, वो उसके लिए जो नए शेयर्स इशू के लिए वो प्राइमरी मार्केट है। और सेकेंडरी मार्केट यानी कि जो एग्जिस्टिंग यानी कि ओल्ड शेयर्स, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में बताया फाइनेंशियल मार्केट 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी आपको बता दिया न्यूली शेयर्स इश्यूज होता है, वो प्राइमरी मार्केट में इंक्लूड होता है। सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज वाइल वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रांजेक्टेड विच हैव बीन ऑलरेडी इश्यूड, यानी कि जो शेयर्स ऑलरेडी इश्यूड कर दिए गए ओल्ड शेयर्स, उसको बोलोगे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट द फर्स्ट वन, मनी मार्केट। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट एसेट्स, यानी कि मनी मार्केट किस चीज़ के लिए? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि शॉर्ट टर्म असेट्स के लिए, ठीक है। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर असेट्स इंस्ट्रूमेंट विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ फॉर मनी। क्लोज सब्सटीट्यूट यानी कि जो ईजिली आपके पैसे कन्वर्ट कर सकती है, यानी कि ईजिली आपके जो असेट्स है वो कैश में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये मनी मार्केट ऐसा मार्केट है जो आपकी असेट्स है ना वो ईजिली कन्वर्ट कर सकती है मनी में। ओके, फाइनेंशियल असेट्स हैविंग अ हाई लिक्विडिटी आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट। हाई लिक्विडिटी यानी कि जो ईजिली कन्वर्ट कर सकते, वैसे ये फाइनेंशियल मनी मार्केट है। इट इज़ अ मार्केट ऑफ बोरोविंग मनी एंड लेंडिंग मनी फॉर शॉर्ट टर्म। यहाँ पे मनी मार्केट का फंक्शन क्या है? मनी मार्केट क्या करता है? बोरो करता है मनी और लैंड करता है, यानी कि लैंड यानी कि मैं अपने पैसे सेविंग कर रही हूँ बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करेगा? जिसको पैसे की ज़रूरत है जिसको चाहिए उसको वो वापस दे देगा। यानी कि समझो कंपनी है तो उसको पैसे की ज़रूरत है फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, तो बैंक क्या करती है? बहुत सारे पब्लिक के पास सेविंग्स हम पब्लिक सब सेविंग इन्वेस्ट करती है किस में? बैंक में, ठीक है। और वही पैसे कंपनी को वो एज ए लोन या तो प्रोवाइड करती है। समझ में आया? तो बोरोवर यहाँ पे कौन हो गया? मैंने पैसे दिए, मतलब मैंने लैंडिंग किए, दिए पैसे, और बोरो किसने किए? वो पैसे कंपनी ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन होता है? मनी लैंडिंग और बोरोवर मनी एंड लेंडिंग मनी का ये काम करते हैं, लेकिन कितने टाइम तक? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। और उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या यहाँ पे लिखा है? इट इज़ अ मार्केट फॉर सिक्योरिटीज हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ईयर लेस देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से कम।
समझ में आया? देयर आर टू पार्टीज ऑफ मनी मार्केट, वन इज़ अ लेंडर एंड अदर इज़ अ बोरोवर। मैंने आपको समझा, एक लेंडर होता है और एक बोरोवर होता है। मनी मार्केट में दो पार्टीज है, एक लेंडर है और बोरोवर है ना। यहाँ पे आते हैं पॉइंट पे। नाउ टू पार्टीज आर देयर, वन इज लेंडर और अदर इज अ बोरोवर। नाउ लेंडर जो पैसा देता है, हम पब्लिक बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि HDFC बैंक में हमारा अकाउंट है, डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। डिपॉजिट अकाउंट में हमने सेविंग डाले, ठीक है, हमारे पैसे हमने डिपॉजिट किए ताकि हम अपना सेविंग बचा के रखें, ठीक है। तो हम पब्लिक बैंक में सेविंग करती है और ये RBI लेंडर करती है। लेंडर यानी कि पैसा कौन देती है? बैंक्स ना, कमर्शियल बैंक ही ना। किसको? जिसको ज़रूरत है। और वो कौन है जिसको ज़रूरत? कौन है? ये बोरोवर हो गया, जिसको कम पैसों की ज़रूरत है। तो लेंडर यानी कि कमर्शियल बैंक्स आ जाती है। लेंडर में कौन इंक्लूड होता है? RBI। कमर्शियल बैंक यानी कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो वो क्या इशू करती है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब इशू करती है। देन बोरोवर कौन होता है? सेकेंड पार्टी कौन होती है? बोरोवर, जो इंक्लूड होता है स्टेट गवर्नमेंट, ट्रेडर्स जैसे कंपनी, फार्मर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सब बोरोवर्स है, यानी कि पैसा बोरो करते हैं जिसको ज़रूरत है, ठीक है। लैंडिंग मतलब गिविंग, सिंपल भाषा है। लेंडर मतलब गिवन मनी एंड बोरोवर मतलब टेकन और यूज़ द मनी। समझ में आया? तो दो पार्टी रहती है, लेंडर और बोरोवर। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि देयर आर टू पार्टीज, लेंडर एंड बोरोवर। लेंडर में कौन कौन से? RBI, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, श्रॉफ्स, यानी कि जो लैंडलॉर्ड, जो पहले के ज़माने में विलेज में उधार पे पैसे देते हैं, ठीक है, आर मेनली रूटेड इन द ग्रुप ऑफ मनी, वाइल फार्मर्स, ट्रेडर्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आर द बोरोवर्स ऑफ मनी, यानी कि जो यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे पैसा देने वाला कौन है? RBI, कोऑपरेटिव बैंक, ये सब, श्रॉफ, ठीक है। लैंडलॉर्ड है ये, बोलते हैं ना ज़मींदार, आपने देखा होगा फार्मर्स को, वो एक विलेज में रहता है लैंडलॉर्ड, ठीक है, मालिक। वो फार्मर्स क्या करते हैं? अगर उसको बीज चाहिए, कुछ भी ग्रो करने के लिए, प्लांट ग्रो करने के लिए उसको बीज चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा? लैंडलॉर्ड के पास जाएगा, वो बीज दे देगा। उधार में उसको कुछ अपना ज़मीन या गिरवी रखना पड़ेगा, बदले में उसको पैसा मिल जाता है, ठीक है। वैसे ही कुछ है, ठीक है। तो मनी मार्केट इज़ नॉट अ फिजिकल लोकेशन लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज बट अ ग्रुप ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग और डीलिंग द मनी। मनी मार्केट का कोई एक फिजिकल लोकेशन या बिल्डिंग नहीं है। इट इज़ लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज है ना, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है एक बिल्डिंग, वैसा कुछ मनी मार्केट का ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लोकेशन कुछ भी नहीं है, बट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग और डीलिंग इन मनी, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस है, कलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस है, जो जहाँ पे मनी बोरो और लेंड किया जाता है, ठीक है, मनी से डील किया जाता है। समझ में आया? जैसे कि वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैंने आपको बोला कमर्शियल बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये सारी बैंक्स क्या करती है? ये सारे जिसको पैसे चाहिए उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है, लेंड करती है। नाउ लेट अस सी द डेफिनेशंस ऑफ मनी मार्केट. Money market is for dealing a short-term finance assets having a high liquidity with close substitute of money. यानी कि मनी मार्केट क्या है? इट इज़ डीलिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स विच हैविंग अ हाई लिक्विडिटी, यानी कि विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है, जहाँ पर रिस्क नहीं है। फर्स्ट वन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी मार्केट. नाउ मनी मार्केट दो पार्ट में डिवाइड है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया? डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. सेकेंड, इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट. कौन सा टाइप का ये मार्केट है? शॉर्ट टर्म असेट्स इंस्ट्रूमेंट है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर या तो लेस देन 1 ईयर है, ठीक है. सेकेंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया. थर्ड वन है क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पार्टिसिपेशन इन मनी मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी कोई पार्टिसिपेट करता है
कंपनी हो या एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, स्मॉल पर्सन हो, स्मॉल बिजनेस पर्सन हो, तो वो पार्टिसिपेट कब कर सकता है? जिसका क्रेडिट वर्दिनेस यानी कि जिसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। अब मैंने इशू कर दिया, पर मेरे में ताकत भी तो होनी चाहिए कि मैं अपना पैसे वापस पे कर सकूँ। मैंने लोन लिया, जैसे आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो वो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करता है कि आपकी सैलरी उतनी है कि आप कैपेबल हो कि आप पैसा वापस पे कर सको, इंटरेस्ट पे कर सको, तभी वो मनी मार्केट अलाउ करेगा। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है क्रेडिट वर्थिनेस, पार्टिसिपेशन इन मनी मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मनी मार्केट इज़ नॉट अ फिजिकल लोकेशन, उसका कोई फिक्स लोकेशंस नहीं है, ठीक है, फिजिकली कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, बट इट इज़ अ कलेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि RBI, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये कलेक्टिव स्ट्रक्चर्स है जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, यानी कि पैसे लेंड करती है, मनी लेंड करती है जिसको ज़रूरत हो फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। इट इज़ अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच आर प्रॉम्प्टली कन्वर्टेबल इनटू कैश, यानी कि ये ऐसा मार्केट है जो इजीली आपके शेयर्स कैश में कन्वर्ट कर सकती है, लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकती है, ट्रेजरी बिल्स एंड कॉल मनी, ठीक है। अब मेरे शेयर्स है तो मैंने अपने शेयर्स दूसरे के नाम पे किए, तो मुझे पैसा मिल गया, ठीक है, तो वो इजीली कन्वर्ट कर सकती है, वैसा मार्केट है। नाउ मनी मार्केट के सब ब्रांचेस भी है। सब ब्रांचेस ऑफ मनी मार्केट ऑल्सो डेवलप विद इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये कब डेवलप होगा? जब आपका इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी जैसे डेवलपमेंट होगा, वैसे मनी मार्केट के सब ब्रांचेस भी डेवलप होंगे, जैसे कि कॉल मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट यानी कि अमाउंट ऑफ मनी विच आर लेंड। एलिमेंट ऑफ रिस्क इज लेस एज कम्पेयर टू द अदर फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे रिस्क कम है क्योंकि ईजिली कन्वर्ट हो सकता है जब चाहो, जब एक साल में आपके शेयर्स पैसे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है कि आपके पैसे डूब जाएंगे, ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है। द सक्सेस इन ऑपरेशन ऑफ मनी मार्केट डिपेंड्स ऑन बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नब ये ऑपरेशन, ये सक्सेस कब होगा, कब भरोसा करेंगे लोग? जब ये बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तब ये मनी मार्केट सक्सेस होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड। नाउ मनी मार्केट दो पार्ट में डिवाइड है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। नाउ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट यानी कि एज इट इज़ द फॉर्मल money market, it consists of RBI, commercial bank, mutual funds, etc. Organized money market in India is regulated by RBI. Now these money market is जो RBI रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ये सारे कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड चलते हैं, ठीक है। तो रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया चेंजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू मेंटेन एडुकेट लिक्विडिटी एज पर रिक्वायरमेंट इन द मनी मार्केट। ना ये RBI जो इंटरेस्ट है, लोन में जो इंटरेस्ट मिलता है, जो भी है इंटरेस्ट जो आपको पे करना है, वो चीज़ें कौन करता है? RBI करती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इंक्लूड्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी एक्सेट्रा। ना ऑर्गेनाइज, मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनाइज यानी कि जहाँ पे फॉर्मल स्ट्रक्चर, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से सारी बैंक्स फॉलो करती है, और ये बैंक किसको देख के फॉलो करती है? RBI, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में RBI क्या क्या इशू करती है? ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी एक्सेट्रा, ठीक है ना। अनऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे मतलब अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। एज ए अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इज इनफॉर्मल, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है, सब अपने हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करते, ठीक है। देयर इज़ नो रेगुलेशंस ऑफ एनी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जिसका रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करे सब। एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट विदाउट एनी रूल्स और रेगुलेशंस। दिस मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, पॉन, इंडिजिनस बैंकर्स, शॉप्स। लैंडलॉर्ड मैंने आपको बोला, ये मनी लैंडर्स एक ही नाम है बट अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड्स मतलब जिसकी ओनर हो,
ठीक है। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, फार्मर्स को अगर पैसे चाहिए तो वो अपने बोलते ना पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा, ठीक है, वहाँ का जो भी नेता है उसके पास जाएगा, या तो कोई भी लैंडलॉर्ड है, ठीक है, पूरे गांव का, बोलते ना साहूकार, उससे पैसे लेगा। तो फार्मर्स के पास से कुछ फार्मर्स को गिरवी रखना पड़ता था, कुछ मॉर्गेज, जैसे कि सोना, या तो उसका जो ज़मीन है वो गिरवी रखते थे, और बदले में ये लैंडलॉर्ड उसको पैसे देते। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि वहाँ पे वो पढ़े लिखे नहीं है फार्मर्स, ठीक है, दे आर नॉट एजुकेटेड। तो प्रॉब्लम कहाँ होती थी कि वो जितना भी इंटरेस्ट चार्ज होता था वो लगा देते, ठीक है, कर्जा बोलते ना, क्रेडिट उधार पे देते थे पैसे, किसको, जिसको ज़रूरत हो उसको, जैसे कि फार्मर्स को। तो वहाँ पे इंटरेस्ट, अब पढ़े लिखे नहीं है तो वो लोग क्या करते, जितना आप इंटरेस्ट ले से दोगे उतना वो लोग पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट इस टाइप का होता है जहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशंस नहीं है। द एक्टिविटीज़ ऑफ अनऑर्गेनाइज मार्केट हैव डेवलप इन रूरल एरियाज़। ये कहाँ से शुरू हुआ है, रूरल एरियाज यानी कि विलेज अर्बन एरियाज़ में। ओके, so I hope you guys understand about this money market. In the next lecture we are going to study about instrument of money market.